गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब तक के लिए हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स देखे थे उसमें हम लोगों ने सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखे, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड देन osmosis and osmotic pressure that we have already discussed. Now in today's topic we will come to know what is the abnormal molar mass and what is the utilizations of a Van't factor in a solution chapter. So आज के टॉपिक में ये दो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि हमारे टॉपिक में हमें क्या दिया गया है। So in this today's topic we will discuss the abnormal molar mass as well as the Van't factor. So first of all, what is abnormal molar mass? So we know that the ionic compound when dissolved in a water dissociate into the cations as well as the anions. Say for example, if we dissolve the 1 mole of KCl in water, we expect to have the 1 mole of each, that is Na plus and Cl minus ion, to be released in the solutions. So if this happens, then there would be 2 moles of particles in the solution, and if we ignore the interionic actions or attractions, the 1 mole of KCl in 1 kilogram of water would be expected to increase the boiling point by the 2, that is 2 into 0.52, that is 1.04 Kelvin. So that is the observations what we have. So now if we did not know about the degree of dissociation, we could be led to conclude that the mass of 2 mole of a particle is 74.5 gram and the mass of 1 mole of KCl would be 37.25 gram, and this brings into the light that the rule that when there is a dissociation of a solution or solute into the ions, the experimentally determined the molar mass is always lower than that of the true value. तो यहाँ तक के टॉपिक में हम लोगों ने क्या माइंड में सेट रखा? तो यहाँ तक के टॉपिक में हमको ये चीज माइंड में सेट करके रखनी है, जो भी आयनिक कंपाउंड है वो जब डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर, तो हमें कैटायंस और एनायंस मिलने वाला है। यानी हम लोग KCl लेंगे तो हमें उसमें से क्या मिलेगा? K प्लस और Cl माइनस मिलेगा। यानी जब हम उसके लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट था 0.52 और उसकी जो KF वैल्यू थी या KB वैल्यू थी उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 1.04। अभी we are not targeting or we are not knowing the degree of dissociation. So mass of 2 mole of particle is 74। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली फॉर्मूला रखी, 2 मोल that is equal to 74.5, so 1 mole that is equal to how much? So we just simply doing 74.5 divided by 2, and that is why we will get a 37.25. So that basic rule we had applied. So यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट में क्या देखा, तो when there is a dissociation of a solute into the ions, the experimentally determined molar mass is always lower than that of the true value. तो यहाँ पे 74 की जगह पे हमारा आंसर क्या है, 37 है। तो यानी हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू दोनों अलग है। से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग द NaCl, so we will get Na plus and Cl minus. If we are taking the FeCl3, then we will get Fe3 plus and 3Cl minus. तो यहाँ पे हमें आयंस कितने मिले, तो यहाँ पे आयंस मिले 2, एक Na प्लस वाला मिला और एक Cl माइनस मिला। यहाँ पे टोटल आयंस हमें कितने मिले, तो यहाँ पे हमें आयंस मिलेंगे 3 plus 1 that is 4।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखना है कि कितना डिसोसिएशन होगा. 1 mole of Fe3 plus and 3 moles of Cl minus is obtained from the 1 mole of FeCl3 compound. So that the thing we need to keep in mind for the elevation in boiling point, depression, or any property that is related with the numbers of a solute particles. And that is why it is quite important for the colligative properties. And that is why the scientist Van 't Hoff had performed the various experimental as well as the theoretical basis, and he relate the certain things and which will be utilized for the abnormal molar mass. Now, if we are taking the example of a 2 moles of CH3COOH, that is the ethanoic acid. So 2 moles of ethanoic acid would be a CH3 twice, COOH twice. So from the 2 moles, it will become a 1 mole. So but in this case, it having the dimer concept. So दो जो concepts है वो क्या हो गए, वो एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से वो क्या हुए, अटैच्ड हुए. So this is the intermolecular hydrogen bond which is existed between the oxygen and hydrogen of a ethanoic acid. So it is the dimeric structure of a ethanoic acid. So molecules of ethanoic acid dimerize in the benzene due to the hydrogen bonding, and this normally happens in the solvent due to or solvent of a low electric or dielectric constant. So in this case, the number of particle is reduced to the dimerization and association of a molecule is depicted as follows. So ये वाली फॉर्मूला हमें मिलेगी. तो यहाँ पे हमें क्या डाइमराइज कैसे करेगा, तो जब सॉल्वेंट के पास इट हैपेंस इन सॉल्वेंट ऑफ ए लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है उसमें हमें डाइमराइजेशंस या ट्राइमराइजेशंस हमें मिलने वाला है. सो इन केस ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द डाइमराइजेशंस. सो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेटिंग रिड्यूस्ड ड्यू टू द डाइमराइजेशंस. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल है और यहाँ पे हमारे पास कितना मोल है, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल है, ओनली 1. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है. नाउ इट कैन बी अनडाउटेबली स्टेटेड दैट if all the molecules of ethanoic acids are associated in benzene, then the delta Tb or delta Tf for the ethanoic acid will be a half of the normal value. So यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा. तो जो भी वैल्यूज है हमारी, वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, वो वैल्यूज हमारी हाफ हो जाएंगी. So the molar mass calculated on the basis of this delta Tb or delta Tf will therefore be the twice the expected values, and such molar mass that is either lower or the higher than the expected and the normal values are termed as the abnormal molar mass. तो abnormal molar mass में क्या हो जाएगा, का तो वो कम हो जाएगा, का तो वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा. तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हमें माइंड में सेट रखना है. ओके, नेक्स्ट वन. तो Van 't Hoff factor, scientist Van 't Hoff in 1880, Van 't Hoff introduced a factor that is I, which is known as the Van 't Hoff factor, and to account for the extent of a dissociation or association. So this factor I is defined as, first one, normal molar mass divided by abnormal molar mass, and second one, the observed colligative property divided by calculated colligative property. तो यहाँ पे हमें दो चीज माइंड में सेट करके रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या है. सो नॉर्मल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आएगा मोलर मास, या फिर आएगी डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम चेंज. ये सब हमारा नॉर्मल प्रॉपर्टीज रहेगी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या रहेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमें यहाँ पे ये चीज याद रखना है. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास बेसिकली 4 है. फर्स्ट वन
lowering of vapor pressure, सेकेंड आएगी elevation in elevation of boiling point, थर्ड आएगी हमारे पास depression freezing point, फोर्थ वन आएगी osmotic। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, यानी वांट ऑफ फैक्टर के लिए हमें कब नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल करना है। अभी नॉर्मल को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज के लिए क्या हो जाएगी, तो I इक्वल टू नॉर्मल बाय एबनॉर्मल, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू थ्योरी वैल्यू डिवाइड बाय प्रैक्टिकल वैल्यू, इसको हम कैसे बोलेंगे फॉर नॉर्मल प्रॉपर्टीज। उसी तरह हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो हमें क्या करना है, दैट इज I इक्वल टू ऑब्जर्व डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, दैट मस्ट बी इक्वल टू एबनॉर्मल बाय इज इक्वल टू प्रैक्टिकल डिवाइड बाय थ्योरी। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे सेट करके रखना है। आपको ये जो है वो कभी भी भूलना नहीं है। कौन से, तो ये वाले जो सेगमेंट्स हैं ये आपको कभी भी भूलने नहीं है। ये दो जो बॉक्स वाले जो फॉर्मूलाज है वो आपको हमेशा याद रखना है। फिर हम लोग आयोनाइजेशंस की बात करेंगे, तो आई के लिए आयोनाइजेशंस वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या मिलेगा, तो आई के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें ये चीज माइंड में रखनी है, टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी यहाँ पे हमें कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, दैट इज आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर वाले कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना है। सो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे फोकस करके रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज कौन सी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, और आई के लिए हम लोग किसका रिलेशंस ले रहे हैं या फिर हम किसका रेशियो ले रहे हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल फॉर द नॉर्मल प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, यानी प्रैक्टिकल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वांट ऑफ फैक्टर में हमें क्या बोला गया है, सो here the abnormal molar mass is the experimentally determined molar mass and the calculated colligative properties are obtained by assuming, or we can say it is the theoretical one, so that the non-volatile solute is neither associated nor get dissociated। ये हमने assumptions लिया है। In next case we have gone through the association as well as the dissociation part. So if we are targeting on the association, so I is less than the unity, so that is the thing that we need to keep in mind। जब हमारे पास एसोसिएशन होगा तो दो में से एक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो हाफ हो जाएगा, यानी वो 0.5 हो जाएगा। सो यहाँ पे आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी। और उसी तरह डिसोसिएशन के लिए हमारे पास इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। सो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको बना के चलना है।
कंडीशन क्या है फॉर एसोसिएशन, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी, और फॉर एसोसिएशन आपको आई की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1 आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ आई फॉर द KCl सॉल्यूशन इज क्लोज टू 2, while the value of ethanoic acid in the benzene or ethanoic acid in benzene is nearly 0.5. so KCl वाले केस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिसोसिएशन में उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं KCl लिखता हूँ, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, K प्लस एंड Cl माइनस मिलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। इज इट डन? तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और एसोसिएशन की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH3 COOH, उसमें से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ब्रैकेट में CH3 COOH, उसका डाइमर बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मोल मिलेगा, सो दैट इज मोर देन 1, एंड यहाँ पे हाफ मिलेगा, देन इट इज लेस देन 1। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, in the case of the want-of factor, we are just going through the inclusions of a want-of factor for the modifieds. The equations for the colligative properties are as follows. First of all, अब हम ये want-of factor कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो want-of factor कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, तो उसके लिए फॉर्मूला थी हमारी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो अब हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम उसको I से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दिस I, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग विद द I। उसी तरह हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उसका फॉर्मूला था हमारा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, तो अभी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I से मल्टीप्लाई करेंगे। डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई V इज इक्वल टू NRT बाई V और N2RT बाई V, तो वो जो फॉर्मूला थी उसको भी हम I से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमारा I क्या हो गया, सपोज मैं KCl ले रहा हूँ, KCl मैं अभी ले रहा हूँ, तो उसमें से मुझे क्या मिला, K प्लस एंड Cl माइनस, यानी हमारा I क्या हो गया, I हो गया हमारा 2। उसी तरह मेरे पास FeCl3 है, तो उसमें से मुझे क्या मिला, Fe3 प्लस वो 1 मोल, एंड दूसरा क्या मिला 3 मोल्स ऑफ Cl माइनस, यानी इस केस में हमारे पास I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो हमें I को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 या फिर मल्टीप्लाई बाई 3, वॉट एवर द आयंस वी गॉट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे जो एग्जांपल्स होगा तब हम लोग देखेंगे, तब तक आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखनी है। जब आपके पास फॉर्मूला और नॉर्मल प्रॉपर्टी होगी, तो नॉर्मल बाई एबनॉर्मल, यानी थ्योरी बाई प्रैक्टिकल, या फिर कैलकुलेटेड बाई ऑब्जर्व, या फिर आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, यानी ये 4 में से कौन सी भी होगी, तो ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड, यानी प्रैक्टिकल बाय थ्योरी, या फिर एबनॉर्मल बाय नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट्स लेना है। और अगर आपके पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, तो आपको क्या करना है, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर वाला कॉन्सेप्ट्स करना है। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने देखा। अब आगे का जो भी एग्जांपल्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, और उसके बाद पूरा थ्योरी सेक्शन हमारा खत्म हो गया है, तो अब हम लोग पूरे फोकस करेंगे न्यूमेरिक्स के बेसिस पे। सो
तब तक आपको क्या करना है, आपको पूरे जो चैप्टर में जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मूला है उसका एक नोट प्रिपेयर करके रखना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, थैंक यू.